Welcome students, good morning all of you. Students, how are you? Everyone is fine, it's okay. Students, today we are starting exercise 9.1 in chapter number 9, indefinite integration. Students, question number first in chapter in exercise 9.1, integrate following with respect to x. Question number first, 4 parts. Part A, part B, part C and part D. 4 parts. Solution. First, part A. First of all, I is equal to integration symbol x square dot dx. Students, we can read cube root of x square. We can read cube root of x square or x square complete power 1 by 3. It's okay. So I is equal to x square complete power 1 by 3 dot dx. It's okay. Next, I is equal to x to the power 2 multiplied by 1 by 3 is 2 by 3 dot dx. It's okay. Students, we know that x to the power n dot dx is equal to x to the power n dot dx. X power n integrate with respect to x is x power n plus 1 upon n plus 1 plus c. It's okay. Comparing to this, I is equal to x power 2 by 3 plus 1 upon 2 by 3 plus 1. It's okay. So I is equal to x power, students, 2 by 3 plus 1 5 by 3 upon 5 by 3 plus c. It's okay. So finally I is equal to 3 upon 5 x power 5 by 3 plus c. It's okay. Please write. स्टूडेंट्स, ये हो गया इस फंक्शन का इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x. स्टूडेंट्स, यू आर अंडरस्टैंडिंग? प्लीज राइट. प्रॉब्लम पार्ट बी. लेट I is equal to integration symbol e to the power 3x dot dx. It's okay. Students, we know that e to the power x dot dx, e power x of integrate with respect to x, we can read is equal to e power x plus c. It's okay. Comparing to this question, I is equal to e power 3x plus c. But students, you know e power x integrate with respect to x is e power x plus c. It's okay. But e power 3x integrate with respect to x, e power 3x, but coefficient of x 3, 1 by 3. It's okay. Here coefficient of x 1, 1 by 1. 1 by 1 is 1. 1 multiply e power x, e power x. It's okay. कहने का मीनिंग है कि अगर x का कोई कोफिशिएंट है तो वो क्या होता है, उसके डिवाइड में आता है. इट्स ओके. अगर लेट अगर यहाँ पर होता e पावर 4x तो इसका इंटीग्रेट क्या होता है विद रेस्पेक्ट टू x, e पावर 4x अपॉन 4. अगर यहाँ 5x होता तो e पावर 5x अपॉन 5. अगर यहाँ a होता तो e पावर ax अपॉन a. इट्स ओके. ये हो गया. स्टूडेंट्स, यू आर अंडरस्टैंडिंग? कोफिशिएंट ऑफ x इंटीग्रेशन में क्या आता है, डिवाइड में आता है. कहाँ आता है? डिवाइड में आता है. इट्स ओके. पार्ट सी. लेट I is equal to integration symbol 1 by 2 power x dot dx. Students, we know that a to the power x dot dx, integrate of a to the power x with respect to x is a power x upon log a plus c. e यहाँ क्या है? बेस में. e बेस में. इट्स ओके. तो कंपेयरिंग टू दिस क्वेश्चन, so I is equal to, देखो a power x, here value of a 1 by 2 power x, तो
comparing to this formula, a power x, it means 1 by 2 power x, 1 by 2 power x upon log a, log base e, value of a 1 by 2. It's okay, plus c. Students, you are understanding? 1 by 2 power x dot dx, इसका हमें इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू x. Comparing to integrate of a to the power x dot dx is equal to a to the power x upon log a plus c. It's okay. Here value a is equal to 1 by 2, x is equal to x with respect to x, so I is equal to a to the power x, value of a 1 by 2 power x upon log a, log value of a 1 by 2 plus c. Students, you are understanding? Confirm. Part D. Students, I is equal to, let I is equal to a power 2 log base a x dot dx. Students, हमें इसका इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू x. इट्स ओके. Students, you know I is equal to, students, by logarithmic identities, 2 change in power x square. इट्स ओके. ये जो 2 है वो x के पावर में चला जाएगा. इट्स ओके. a log a x square dot dx. इट्स ओके. Students, you are understanding? We know that a log x, we can write log x power a. It's okay. Comparing this, it's okay. So I is equal to, students, a log a of value 1, इस यहाँ से इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी. 1 मल्टीप्लाई किससे होगा? x स्क्वायर से. तो क्या आएगा? x स्क्वायर डॉट dx. इट्स ओके. स्टूडेंट्स, x स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू x, comparing to x to the power n, it means x square plus 1 upon 2 plus 1 plus c. Students, you are understanding? Last and finally, x is equal to 2 plus 1 3, so x cube upon 3 plus c. Students, you know a power 2 log x dot dx, हमें इसका इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू x. वी कैन राइट a log a x square, 2 change in power, so a log x is equal to x log a log x is equal to log x power a. Students, value of a log a is equal to 1 multiply x square dot dx, x square of integrate with respect to x, x cube upon 3 plus c. It's okay. Students, you are understanding? Please write. Next, question number 2. Students, question number 2, find the value following integrate given below. आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डॉट डॉट आगे जो भी क्वेश्चन आपको वो इंटीग्रेट के व्यू में आपको गिवन है, आपको उनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है. इट्स ओके. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 आपको ये गिवन है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. इट्स ओके. आपको इंटीग्रेशन सिंबल पहले से गिवन है, किसके रेस्पेक्ट में करना है? एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, ये भी आपको पहले से गिवन है. इट्स ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सिंबल दिस वैल्यू एज इट इज डॉट dx. स्टूडेंट्स, हमें इसका इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू को हम सेपरेट करते हैं. 5 cos x ऐसा क्या एज इट इज, माइनस 3 sin x एज इट इज. स्टूडेंट्स, 2 एज इट इज, 1 upon cos square x change in sec square x dot dx. इट्स ओके. स्टूडेंट्स, इसका जो इंटीग्रेट होगा, आपको मैंने जो लास्ट क्लास में आपको मैंने जो स्टैंडर्ड आपको मैंने फॉर्मूले राइट करवाए थे उन्हीं में से देखिए स्टूडेंट्स. आई इज इक्वल टू 5 इज कांस्टेंट एज इट इज, इंटीग्रेट ऑफ cos x विद रेस्पेक्ट टू x sin x. इट्स ओके.
minus 3 as it is. Integrate of sin x with respect to x is minus cos x. Minus cos x plus 2 as it is. Integrate of sec square x with respect to x is tan x प्लस c. देखो देखिए ध्यान से, यहां से यहां तक कंप्लीट इंटीग्रेट हो गया, प्लस में c ऐड कर दिया. स्टूडेंट्स i इक्वल टू 5 sin x प्लस 3 cos x प्लस 2 tan x प्लस c. दिस इज वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन. इंटीग्रेट, ये आपका आंसर आ गया. आपको जो वैल्यू गिवन थी उसका इंटीग्रेट वैल्यू ये आ गई. इट्स ओके. स्टूडेंट्स प्लीज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. लेट i इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स. स्टूडेंट्स ये आपको गिवन है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. आपको इंटीग्रेशन सिंबल विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑलरेडी आपको गिवन है. अब देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको करते हैं सेपरेट. i इक्वल टू एक्स स्क्वायर किसके डिवाइड में, एक्स क्यूब के डिवाइड में, तो क्या आएगा एक्स आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर किसके डिवाइड में, 1 के डिवाइड में, तो क्या राइट करेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट dx. इट्स ओके. स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब के डिवाइड में वी कैन राइट एक्स स्क्वायर 1 के डिवाइड में वी कैन राइट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. इट्स ओके. स्टूडेंट्स अब इससे करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं. i इक्वल टू स्टूडेंट्स इंटीग्रेट ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x पावर 1 ऑफ इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1. इट्स ओके. माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x माइनस 1 अपॉन x प्लस c. स्टूडेंट्स मैंने आपको प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट होता है माइनस 1 अपॉन एक्स. इट्स ओके. i इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस 1 बाई एक्स प्लस c. ये आपका कंप्लीट इंटीग्रेट हो गया. इट्स ओके. स्टूडेंट्स अगेन रिपीट, x पावर 1 x इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2. इट्स ओके. माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस c. इट्स ओके. क्वेश्चन नंबर 4. स्टूडेंट्स लेट i इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स. sec स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स कंप्लीट डॉट dx. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4. आपको वैल्यू फाइंड करना है. फाइंड द वैल्यू फॉलोइंग इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x. इट्स ओके. आपको ऐसा सिंबल, ये आपको कंप्लीट कंडीशन आपको गिवन है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. वैल्यू फाइंड मतलब आपको इसका इंटीग्रेट करना है. ठीक है स्टूडेंट्स. यू नो i इक्वल टू प्रीवियस क्लास वी स्टडी इंटीग्रेट ऑफ sec स्क्वायर x विद रेस्पेक्ट टू x इज tan x. sec स्क्वायर x का इंटीग्रेट क्या होता है, tan x होता है. प्लस प्लस cos स्क्वायर x का इंटीग्रेट क्या होता है, माइनस cot x होता है. प्लस c. स्टूडेंट्स इंटीग्रेट का सिंबल रिमूव होते ही आपको क्या लगाना है, प्लस c राइट करना है. इट्स ओके. सो फाइनली i इक्वल टू tan x प्लस माइनस माइनस cot x प्लस c. जो भी आपके पास वैल्यू आती है उसको आप रेक्टेंगल बॉक्स में आपको क्लोज करना है. इट्स ओके. स्टूडेंट्स यू आर अंडरस्टैंडिंग. प्लीज राइट इंटीग्रेट ऑफ sec स्क्वायर x tan x इंटीग्रेट ऑफ cos स्क्वायर x माइनस cot x प्लस माइनस माइनस. सो i इक्वल टू tan x माइनस cot x. इट्स ओके. क्वेश्चन नंबर 5. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5. 1 plus x into root x. So first of all write let I equal to 1 plus x into root x.
डॉट डी एक्स। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, 1 प्लस एक्स इंटू रूट एक्स डॉट डी एक्स, फाइंड द वैल्यू फॉलोइंग इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इट्स ओके, मीन आपको इसका इंटीग्रेशन ही करना है, लेकिन आपको इंटीग्रेशन सिंबल पहले से गिवन है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू फाइंड करो। इसकी वैल्यू फाइंड का मीन क्या हुआ, इसका हमें इंटीग्रेट करना है। इट्स ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन सिंबल, स्टूडेंट्स रूट एक्स मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स, रूट एक्स प्लस एक्स रूट एक्स डॉट dx. It's okay. I is equal to, students, root x we can write x power 1 by 2, x power 1 by 2 plus x root x we can write x power 3 by 2 dot dx. It's okay. Students, I is equal to x power 1 by 2 integrate with respect to x, comparing x to the power n dot dx. It means x power 1 by 2 plus 1 upon 1 by 2 plus 1. Students, x power n का इंटीग्रेट क्या होता है, x power n plus 1 upon n plus 1। तो यहाँ पर n का काम कौन कर रहा है, 1 by 2 कर रहा है, तो x power n 1 by 2 plus 1 upon 1 by 2 plus 1। Similarly, x power 3 by 2 plus 1 upon 3 by 2 plus 1 plus c. Finally, I is equal to, students, 1 by 2 plus 1 3 by 2, जब अप में जाएगा तो 2 by 3, x पावर 3 by 2 प्लस 3 by 2 plus 1 5 by 2, 3 by 2 plus 1 5 by 2, we can write 2 by 5, x power 5 by 2 plus c. Students, you are understanding? Please write. Students, next question number 6. Question number 6, find the value following integrate with respect to x. Students, first of all write let I is equal to integration symbol a to the power x dot dA. Students, हमें इसका इंटीग्रेट करना है with respect to a, with respect to a इसका इंटीग्रेट करना है। इट्स ओके। तो कंपेयरिंग ऑन x to the power n, students we know that x to the power n dot dx is equal to x power n plus 1 upon n plus 1 plus c. Students, here a but here x, so x to the power n integrate with respect to x. Similarly, a to the power x integrate with respect to a, so I is equal to a power x plus 1 upon x plus 1 plus c. Students, x power n plus 1 upon n plus 1 with respect to x, so similarly a to the power x, so a to the power x plus 1 upon x plus 1 plus c. It's okay. देखिए यहाँ पर x की पावर n का इंटीग्रेट था विद रेस्पेक्ट टू x, और यहाँ a टू दी पावर x का इंटीग्रेट है विद रेस्पेक्ट टू a। इट्स ओके। तो यहाँ पर a के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट है, तो यहाँ पर a क्या होगा, वेरिएबल के रूप में होगा, और यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट है तो x क्या वेरिएबल है। इट्स ओके, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सिंबल x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट dx। स्टूडेंट्स, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी कंप्लीट की वैल्यू फाइंड करनी है। और अगर हम इसको देखें, ओनली इसको हम अगर देखते हैं, तो इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। इट्स ओके। स्टूडेंट्स, हम क्या करें कि इसका इंटीग्रेट हो जाए, यू नो, देखिए एक्स स्क्वायर, स्टूडेंट्स न्यूमिनेटर में क्या है एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या इस न्यूमिनेटर को हम डिनोमिनेटर की जैसा बना सकते हैं? इस एक्स स्क्वायर को हम बना सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बना सकते हैं। कैसे? तो देखिए आई इक्वल टू इस एक्स स्क्वायर में 1 ऐड करते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट dx। स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर में हमने 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, एक्स स्क्वायर पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। इट्स ओके। सेपरेट
1 प्लस एक्स स्क्वायर, वन टाइम किसके डिवाइड में, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के डिवाइड में, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके डिवाइड में, 1 के डिवाइड में, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट dx. Students, you are understanding? Next, I is equal to, students, 1 plus x square upon 1 plus x square, 1 minus 1 upon 1 plus x square dot dx. Students, you know I is equal to integration of 1 with respect to x. Integration of 1 with respect to x is x. अगर यहाँ पर 2 होता तो 2 का इंटीग्रेट क्या होता विद रेस्पेक्ट टू x, 2x होता. अब यहाँ पर 3 होता तो 3x होता. अब यहाँ पर 1 है तो 1 का इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x 1x तो x हो गया. माइनस माइनस स्टूडेंट्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x tan इनवर्स x प्लस c. इंटीग्रेट पूरा क्लियर होते ही आपको क्या लगाना है, प्लस c लगाना है. इट्स ओके. Students, you are understanding? Question number 8. Question number 8. Students, question number 8. First of all, write let I is equal to cos square x upon 1 plus sin x. 1 plus sin x dot dx. Students, we can write cos square x. We know that cos square x is equal to 1 minus sin square x. 1 minus sin square x, it's okay, upon 1 plus sin x as it is, 1 plus sin x as it is, it's okay. Students, I is equal to, we can write 1 minus sin square x, 1 minus sin square x we can write. Students, 1 is 1 square, it's okay. So a square minus b square, a minus b into a plus b. तो then 1 minus sin square x we can write 1 minus sin x into 1 plus sin x upon 1 plus sin x dot dx. 1 plus sin x cancel to 1 plus sin x. Students remaining 1 minus sin x dot dx. It's okay. Is equal to, students, is equal to integrate of 1 with respect to x is x. It's okay. Minus minus as it is. Integrate of sin x with respect to x is minus cos x. Minus cos x plus c. It's okay. So I is equal to x minus minus plus cos x plus c. Students, you are understanding? Please write. Cos square x we can write 1 minus sin square x. 1 minus sin square x, 1 minus sin x into 1 plus sin x. 1 plus sin x cancel to 1 plus sin x. Remaining 1 minus sin x integrate with respect to x. 1 is integrate with respect to x, x minus minus as it is. Integrate of sin x with respect to x is minus cos x. It's okay. Students, question number, please write. Students, next question number 9. Students, question number 9. Find the value following integrate with respect to x. Find the value following integrate with respect to x. Students, हमें ये पहले से given है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. देखिए इंटीग्रेशन सिंबल, बिकॉज आपको इंटीग्रेशन सिंबल आपको पहले से गिवन है. इट्स ओके. इट मींस वी कैन से दैट कि फाइंड द वैल्यू फॉलोइंग इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. आपको ये जो गिवन है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. इट मींस हम इसको सॉल्व करना है. इट्स ओके. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट सिंबल sec x into sec x plus tan x dot dx. I is equal to integrate symbol sec x multiply sec x plus tan x. We can write sec square x plus sec x into tan x dot dx. It's okay. Students,
प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेट क्या होता है, sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेट क्या होता है। ये सुनो, आपको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूले आपको मैंने राइट करवाए थे। इट्स ओके। तो देखिए, इंटीग्रेट ऑफ sec स्क्वायर एक्स विद रेस्पेक्ट टू x इज टेन एक्स प्लस इंटीग्रेट ऑफ sec x इंटू टेन एक्स विद रेस्पेक्ट टू x इज sec x प्लस c। Students, very simple. First of all, write I is equal to sec x multiplying bracket sec x plus 10x. So we can write sec square x plus sec x into 10x. Sec square x integrate with respect to x is equal to 10x plus as it is integrate of sec x into 10x with respect to x is equal to sec x. So finally write I is equal to 10x plus sec x plus c. रेक्टेंगल बॉक्स में क्लोज कर दिए। इट्स ओके स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 फाइंड द वैल्यू फॉलोइंग इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x। ये आपको पहले से गिवन है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इट्स ओके स्टूडेंट्स, वी नो दैट साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, वी स्टडी साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। It's okay. Similarly, tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2. Similarly, sec inverse x plus cosec inverse x is equal to pi by 2. But here, sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2. So according to question, I is equal to integration symbol pi by 2. Value of sin inverse x plus cos inverse x is pi by 2 dot dx. Students, pi by 2 taken out common, okay, into 1 dot dx. Students, pi by 2 मैंने इंटीग्रेशन सिंबल से बाहर ले लिया, तो अंदर क्या हो गया 1 dot dx. pi by 2 as it is 1 of integration with respect to x is x और प्लस c. 1 इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट का किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट होता है तो वो वेरिएबल उस कांस्टेंट से क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। 1 इंटू एक्स, तो क्या होगा x होगा। इट्स ओके। तो 1 का इंटीग्रेट x हो गया, x इससे मल्टीप्लाई हो गया प्लस में c, और ये आपका आंसर हो गया। इट्स ओके स्टूडेंट्स, यू आर अंडरस्टैंडिंग, प्लीज राइट। और घर जाके इसको अच्छे से कवर करना है स्टूडेंट्स, अच्छी पढ़ाई करना, अच्छे क्वेश्चन सोल्व करना। स्टूडेंट्स, अगर आपने स्टार्टिंग में अगर आपने अच्छे से इसकी पढ़ाई नहीं की, आपने फॉर्मूले लर्न नहीं किए, आपने इसको सॉल्व नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की, आपको इंटीग्रेशन चैप्टर नहीं आएगा। इसलिए अपने बेस को बिल्कुल मजबूत कीजिए। आप समझ रहे हैं? इसलिए कंप्लीट जो इंटीग्रेट जो फॉर्मूले हैं, डिफरेंशिएशन फॉर्मूले हैं, आपको उनको लर्न करना है। वो लर्न होंगे तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। इट्स ओके, थैंक्स।